Assalamu alaikum students, welcome back to EVEC High School homework series. Kids, in today's video we will complete class 5 science unit number 2 microorganisms, MCQs, short question answers and constructed response questions. Kids, before we begin the video, please make sure that you subscribe to the channel, share it with your friends if you want to understand science concepts in most easiest way possible. Alright, so let's begin the video. Our first exercise is MCQs. First MCQ is mushrooms belong to which group? Mushrooms belong to fungi group. Next MCQ is what causes polio? बच्चों पोलियो जो होता है वो that is a viral disease, right? So it is caused by virus. Penicillium is an example of which group? Kids, Penicillium is a kind of mold, okay? And we know that molds are in the group of fungi. Food is contaminated due to the presence of dash in the environment. Moisture, microorganisms, air or heat. So the correct option is microorganisms, also called germs. Last question is which of the following is not a microorganism? Bacteria, virus, algae or ant? Ant is not a microorganism. Why? Because you can see it with your eyes, and microorganisms are the organisms that we cannot see with our naked eye. We need microscope to see microorganisms, isn't it? So now let's hop on to next exercise, that is write short question and answers. So question number 1 is what are pathogens? How does it enter in the body of organisms? Pathogens क्या होते हैं और ये किस तरह से organisms की body में enter करते हैं? We know that organisms क्या क्या चीज़ें हैं? Human, animals, plants, right? जैसे हमने अपने chapter number 1 में study किया था. Kids, if still you have not seen the video of unit number 1, so I am giving you a link over here which you can click and first complete your exercise of unit number 1 and then you can return back to this video. Alright, so answer to this question is pathogens are tiny living organisms like bacteria, viruses and fungi that can cause diseases in human, animals and plants. ओके पैथोजेंस जो होते हैं वो बहुत छोटे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, और ये कॉज करते हैं डिजीजेस ह्यूमंस में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में. पैथोजेंस कैन एंटर इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू द एयर, वाटर, फूड एंड इंजरीज. ऑलराइट, और एक और इसमें रीज़न है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन. ठीक है, अगर किसी बीमार इंसान के साथ भी आप इन कांटेक्ट में आते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपके अंदर भी वो डिजीज़ आ जाए. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई आर सम बैक्टीरिया एंड फंगाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स? कुछ बैक्टीरिया और फंगाई को हम डीकम्पोजर्स क्यों कहते हैं? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज some bacteria and fungi are called decomposers because they break down dead plants, dead animals and waste material into simpler substances. Okay, कि वो break down करते हैं already मरे हुए plants, animals या waste products को into simpler substances. Question number 3 is write down 2 benefits and 2 harmful effects of bacteria. Okay, so you tell me, जो viruses होते हैं are they harmful or are they beneficial? Viruses, always remember that viruses are always harmful. Okay, good virus, bad virus नहीं होता. Virus is always bad. Okay, whereas bacteria can be good and can be bad. Okay, यहाँ पे हमें बताना है 2 एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया की जिसमें वो हमारे लिए हार्मफुल है और 2 एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया की जिसमें वो हमारे लिए हेल्पफुल है. सो 2 बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया. सम बैक्टीरियाज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, राइट, एज वी हैव डिस्कस्ड इट दैट कुछ बैक्टीरियाज ऑलरेडी हमारे स्टमक में मौजूद होते हैं जो हमारा जो खाना होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं. नंबर 2, some bacteria help in making yogurt, cheese, dough. ये जो आप पिज्ज़ास खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, इनके लिए जो ब्रेड यूज़ होती है that is also made by bacteria. Okay,
Now, two harmful effects of bacteria. Some bacteria cause diseases like typhoid and tuberculosis. राइट, ये कुछ बीमारियां हैं, बहुत सिवियर बीमारियां हैं जो हमें बैक्टीरिया के अटैक से हो सकती हैं. सम बैक्टीरिया स्पॉइल फूड एंड मेक इट अनसेफ टू ईट. और कुछ बैक्टीरियाज हमारे खाने को भी स्पॉइल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट वर्क टू सॉफ्टन एंड राइज डो ऑफ फ्लो. ये जो हम ब्रेड खाते हैं, पिज्ज़ाज खाते हैं, इनकी जो ब्रेड होती है, इनकी जो डो होती है, वो किस तरह से इतनी नरम और सॉफ्ट हो जाती है विद यीस्ट. तो हमें ये प्रोसीजर बताना है. ओके, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यीस्ट इज अ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इन बेकिंग. ओके, जो भी चीज़ बेक होती है उसके अंदर यीस्ट का लाजमी इस्तेमाल होता है. When yeast is added to flour dough, जब यीस्ट को ऐड किया जाता है आटे के अंदर, it feeds on the sugar in the dough. ओके, तो जो आटे के अंदर ऑलरेडी शुगर मौजूद होता है उसको वो खाना स्टार्ट कर देती है. नंबर 2 पे क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, और जब वो उस शुगर को खाती है तो उससे वो रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड. द गैस forms bubble in the dough, making it soft and rise. ओके, तो वो जो गैस प्रोड्यूस होती है शुगर खाने के बाद यीस्ट के थ्रू, तो वो हेल्प आउट करती है हमारा जो वो आटा है, हमारी जो डो है, उसको सॉफ्ट करने में और उसको राइज करने में. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इज हाउ डज अ मॉस्किटो ट्रांसमिट डिजीज. एक मॉस्किटो किस तरह से मुंतकिल करता है बीमारी. सो इसके मैंने ये 4 स्टेप्स लिखे हैं, आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो. ओके, मॉस्किटोज बाइट अ सिक पर्सन एज यू कैन सी इन द पिक्चर ओवर हियर. मॉस्किटो सबसे पहले एक बीमार इंसान को काटेगा जिसको डेंगू है या मलेरिया है या इस तरह की कोई चीज़ है. वो जो जर्म होगा डेंगू का या मलेरिया का, वो मॉस्किटो के अंदर रह जाएगा. ओके, और फिर जब मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो जो जर्म मॉस्किटो के अंदर था मलेरिया या डेंगू का, वो अब जो हेल्दी पर्सन है उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा. दैट इज़ हाउ मॉस्किटोज ट्रांसमिट डिजीजेस. ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. किड्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ऑलराइट, तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन है तो आपने इसको देख के परेशान नहीं होना. लेट्स जस्ट ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. सो द क्वेश्चन इज द सॉइल ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ हॉट क्लाइमेट इज ऑलवेज हॉट एंड मॉइस्ट. जो ज़मीन होती है या जो मिट्टी होती है हॉट क्लाइमेट्स के फॉरेस्ट की, वो हमेशा गर्म और नमी वाली होती है. वेयर एज द सॉइल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ कोल्ड क्लाइमेट इज कोल्ड एंड ड्राई. जबकि जो मिट्टी होती है ठंडे इलाकों के फॉरेस्ट्स की, वो ठंडी और खुश्क होती है. आउट ऑफ दीज 2 एरियाज, इन दोनों एरियाज में से, यानी कि हॉट क्लाइमेट वाले और कोल्ड क्लाइमेट वाले एरियाज यानी फॉरेस्ट्स में से, वेयर द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लीव विल हैपन मोर क्विकली. कहाँ पे आपको लगता है कि डिकम्पोजिशन तेज़ी से होगी. जो पत्ते गिरते हैं दरख्तों से झड़ के, उनकी डिकम्पोजिशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी. हॉट क्लाइमेट में ज़्यादा होगी या कोल्ड क्लाइमेट में जल्दी और ज़्यादा होगी. तो ये आपने एक्सप्लेन करना है. इसके आंसर से पहले लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस पिक्चर. ओके, एक तरफ हॉट एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट है यानी कि हॉट क्लाइमेट वाला फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ कोल्ड क्लाइमेट वाला फॉरेस्ट है. तो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है. तो नमी किस इन्वायरमेंट में उन्हें सबसे ज़्यादा मिलेगी, हॉट फॉरेस्ट्स में. राइट, तो इसलिए हॉट फॉरेस्ट वाले जो इलाके होंगे उसके अंदर बहुत तेज़ी से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा. ऑलराइट, सो इसका आंसर ये बनेगा कि warmth and moisture create best conditions for decomposers like bacteria and fungi. These microorganisms work faster in
hot and moist soil, breaking down dead leaves quickly. In cold and dry climates, decomposition is slow because microorganisms are less active. ओके इस तरह आप इसको याद रखें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ठंडे इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज है, कोल्ड क्लाइमेट है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो जाते हैं। ओके लेकिन जो हॉट इन्वायरमेंट होता है, जो वार्मथ, जहाँ पे वार्मथ ज़्यादा होती है, गर्माइश ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत एक्टिव होते हैं। ओके so with this kids we have completed our MCQ, short question answers and constructed response question of unit number 2 microorganisms. Next week we will upload a video on solved exercise of unit number 3. So make sure that you subscribe to the channel so that you can get your work done timely.